Hello guys, welcome to all. Welcome to Unacademy. This is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. I welcome you all to this special session on principles of management. Yeah, this is based on multiple choice questions round, right? Wherein I am going to deal with you the second chapter of your 12th class syllabus, Principles of Management. Let me introduce myself. I'm a chartered accountant, BCom honors, and fellow chartered accountant. I qualified in 2004. You can follow me on Unacademy app so that you could get all the notification about my all upcoming and running plus courses. I am educator at Unacademy and I teach both subjects, accountancy as well as business study for class 11th and class 12th. Before starting this session, I have some important announcement and information for you guys. The first one is, what is Unacademy Plus features? You must, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, you must join this plus course now. Yes, now. Why? Because Unacademy Plus features are so important, you will love it. Like the first feature is learn live from the comfort of your home. Means you can learn education from anywhere. From your home, आप पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आप कार में बैठे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप आराम से हमारी सारी क्लासेस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं. दैट टू फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एट वन प्लेटफॉर्म. इसका मतलब कि आप अपने टॉप एजुकेटर से कहीं पर भी पढ़ सकते हैं. यस, एंड एजुकेटर ऑफ योर चॉइस. आपको जो एजुकेटर पसंद आता है, यू हैव ऑल द एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया, वन फ्रॉम दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, भुवनेश्वर, राइट, दरभंगा, बिहार, सो मेनी प्लेसेस, रांची, यस, मुजफ्फरनगर. So you can take your classes from top educators of India at one platform. And if you are joining this plus course, use this referral code. It's going on, right? नीचे line आ रही है. Use referral code Ram Ahuja. You will get 10% discount for you. Yeah, good option ना? You will get 10% discount straightforward while joining referral code. This Ram Ahuja. अगर आप plus course referral code use करते हैं Ram Ahuja, तो आपको 10% discount भी मिलेगा. Then unlimited access to all courses. जितने भी कोर्सेज हैं आप ज्वाइन करते हैं, सारी अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटीज देयर. ऐसा नहीं है कोई लिमिटेशन है कि आप इतने व्यूज कर सकते हैं, एज व्यूज एज यू वांट. अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है, मान लीजिए लाइव क्लास, तो आप रिकॉर्डेड सुन सकते हैं और लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं. एंड देयर इज ए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो. एवरी फोर्थ क्लास इज ए डाउट क्लियरिंग सेशन. मीन्स फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो आप फोर्थ क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन होंगे, प्लस मेंटोरशिप एंड गाइडेंस. मतलब आपको साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी मिलेगा, मोटिवेशन के लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस ऐसे सेशन भी होंगे जो आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड होंगे, मोटिवेशन से रिलेटेड होंगे, वो भी आपको मिलते रहेंगे. सो डू ज्वाइन नाउ this plus features. Do join plus courses. I'll see you there in the plus courses, right? And use this referral code Ram Ahuja. You will get 10% straightforward discount, right? And daily practice session and weekly mock test. Yeah, अच्छा है ना, रिवीजन होती रहेगी साथ साथ में. अब आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं सर, कैसे पता चलेगा? तो आई टेल यू, इस समय क्लास 11 का साइंस का एंड कॉमर्स का पूरा सिलेबस का बैचेस चल रहे हैं. 11 कॉमर्स इंग्लिश के अंदर में एंड 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम ऑल्सो. So you have all the options. You want to join in English, you can join. You want to join in Hindi, you can join. Wow, right? 11 science भी, both in English medium as well as Hindi medium. You want chemistry, physics, biology, mathematics, accountancy, economics, whatever you want, you can join. Batches है ना?
ट्वेल्थ के लिए भी, ट्वेल्थ साइंस इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम गोइंग ऑन, ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम गोइंग ऑन, so you can join any plus course you want. आप बोलेंगे आई एम इन कॉमर्स, व्हाई शुड आई जॉइन साइंस? यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स, you have friends, relatives, colleagues, your juniors, you can refer them. And don't forget this code Ram Ahuja, है ना? Do tell them to use this code Ram Ahuja. They will also get straightforward 10% discount, right? Great. Then there is a commerce NCRT weekend batch. If you cannot join in weekdays, you can join weekend batch also. 11 commerce Hindi, 11 commerce English, right? Same way 11th science Hindi medium as well as English medium are available. तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस स्टडी के लिए. Yes, the timings are 11 to 12:30 every Saturday Sunday. वाओ, इजी ना? कितना अच्छा लगता है ना, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास, मस्त लर्निंग. Same way you can join me on weekend batch also for 12th class. It is 9 to 10:30 morning. Yeah, Saturday Sunday morning 9 to 10:30 you can join me. Batches are going on 12th science, English medium, Hindi medium, and this commerce weekend batch, English medium as well as Hindi medium, right? So you can join any of your batches of your choice. Then there is revision batch also. अगर आपको लगता है आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप रिवीजन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. Revision batches for science as well as commerce. Yeah, any of the batch you can join. Revision batch for class 11th Hindi medium as well as English medium, right? Then revision batch is going on for the science students, for commerce students, so you can join these revisionary batches also. For 11th also, yeah, revision batches, practice paper batches are going on for science and commerce students. For 11th class science stream Hindi medium, for 12th class science stream Hindi medium, for 11th class commerce stream Hindi medium as well as 12th class commerce stream Hindi medium practice paper batches are going on. You can join these batches. So many batches. And very important announcement for you all. Let's crack NCERT English CBSE class for 12th English 2021. सिर्फ 3 महीने का कोर्स है. 18th से स्टार्ट हो रहा है, एंड डेट 18th को खत्म हो रहा है, और आपकी स्टार्ट डेट है 7 सितंबर, राइट? फ्रॉम 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे, 9 to 10 PM मंडे टू फ्राइडे you can join these batches, right? And another faculties are also there, Nupur Roy, Shipra Mishra, right? You can join these batch also 3:30 to 4:30 Monday to Friday. If you feel time is not suitable for you, the 9 to 10 PM, you can join 3:30 to 4:30 PM. You have both the choices. Do join this course. Use this referral code Ram Ahuja. Let's begin with the session. Before that, I want to tell you that humanities courses are also going on there. The good news for you all that CBSE class 11, 12 humanities or learners can also join Unacademy Plus. You may read political science, history, geography, economics, sociology, psychology, English, PE, IP, Hindi, etc. Right? So you can join me also. We are having weekdays batches or weekend batches. You can join me on weekdays batches also for 11th business study, 12th business study, 11th accountancy, 12th accountancy. We have weekend batches. You can join me there also. These are featured educators. आपको जानना होगा कि कौन से educators हैं, कितना experience है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं. So you have so many educators: अंजलि यादव, वर्षा मुखर्जी, धीरज कुमार, अजय दयाल, उर्मित चक्रवर्ती, निकी सिन्हा. So many are there, right? Then you had Dr. Nikita Bhandari, Meenakshi Dhal, Anita Acharya, Vandana Bajaj. So many educators with you guys. Arpit Porwal, Nupur Roy, right? Shipra Mishra. All you can study from any of top educators across India. अब आप जानना चाहते हो कि what is the fees level, है ना? For 11th and 12th subscription, it is 938 rupees per month only. If you are in 11th class and joining for 11th and 12th subscription, it is 938 rupees per month only. That's it. And don't forget to use this referral code Ram Ahuja. अब राम आहूजा रेफरल कोड यूज करेंगे, you will get 10% discount, right? And if you are in 12th class, the per month fees is 1125 only. Yeah,
1125 only per month fees if you are in 12th class and want to take plus course. So do join now. अभी join करो plus courses. इतने सारे फायदे यार, don't lose it. चलिए let's start करते हैं आज का सेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज का सेशन है. लेट्स बिगिन विद दिस. व्हाट वाज द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ F.W. टेलर? अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स, या कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है. पता है क्या, अगर आप मन में आंसर रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप वही सोच रहे हैं जो करेक्ट आंसर है, जो नहीं होता, राइट? तो चेक योर सेल्फ नाउ. अगर आप इस प्रैक्टिस को देख रहे हैं, आपके फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट कीजिए नीचे व्हाट इज द ऑप्शन. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन. ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी मैकेनिकल इंजीनियर, सी माइनिंग इंजीनियर और डी आर्किटेक्ट. कमेंट बॉक्स में पहले ऑप्शन का आंसर दीजिए, फिर आप आंसर चेक कीजिएगा. आपको एक्यूरेटली पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं. गॉट इट? है ना? खुद को असेस करना भी चाहिए ना, पता चलेगा कि आप कितना लर्न कर पाए हैं, राइट? एंड इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. व्हाट वाज द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर? बिल्कुल टाइम दे रहा हूं आपको. क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा? नहीं नहीं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो ही नहीं सकता. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं तो सीए कैसे, है ना? लगता है थोड़ा सा. हाँ, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, माइनिंग इंजीनियर भी हो सकते हैं. तो क्या हो सकते हैं, सोचिए. आपने कमेंट बॉक्स में किया या नहीं किया, पहले ये बताएं. नहीं किया ना अभी तक? अरे करो भाई, मैं चेक करूंगा, आपके कमेंट बॉक्सेस चेक करूंगा कि आपने कितने आंसर्स दिए, कितने आंसर्स करेक्ट थे आपके, राइट? नई शुरुआत है नई गेम की तरह, बड़ा अच्छा लगेगा. चलिए, आपने कमेंट कर दिया नीचे. अब चेक करते कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था. बताइए. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वाज मैकेनिकल इंजीनियर बाय बैकग्राउंड. बिल्कुल 3 इडियट पिक्चर में जो आमिर खान थे, मशीनों से प्यार, बिल्कुल वैसे थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. मैकेनिकल इंजीनियर, मशीनों से बहुत प्यार था. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the professional background of Henry Fayol? क्या बात है सर, सबके यार बैकग्राउंड पूछे जा रहे हो, अच्छा लगता है. ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी मैकेनिकल इंजीनियर, सी माइनिंग इंजीनियर और डी आर्किटेक्ट. सोच लिया? आपको सोचने का पूरा मौका दिया मैंने. टेक योर ओन टाइम, रिलैक्स, अपना टाइम लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए व्हाट वाज द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ हेनरी फेयोल. नहीं, मैं तब तक आंसर नहीं दिखाऊंगा जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे नीचे. हाँ जी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. लिख सकते हैं आप पूरा. अगर आपको लगता है ही वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर तो मैकेनिकल इंजीनियर लिख दीजिए. ऑप्शन बी लगता है, ऑप्शन बी लिख दीजिए. वॉट एवर इज योर चॉइस. चलिए, मैं भी बता देता हूं आपको आंसर. द करेक्ट आंसर इज माइनिंग इंजीनियर. हेनरी फेयोल माइनिंग इंजीनियर थे बाय बैकग्राउंड. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको मालूम होना चाहिए. आपका 12th बोर्ड में ये बहुत हेल्प करेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग थियरी ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन. क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, बी नियो क्लासिकल थ्योरी, सी बिहेवियरल साइंस अप्रोच और डी मॉडर्न मैनेजमेंट. आप कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, कभी पढ़ा तो नहीं हमने. बेटा, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. यस,
तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इट इज़ अप टू यू, बट ये आपकी एनसीईआरटी में है और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको चॉइसेस में दे दूं आपको। बहुत सोच समझ करके आपको इसका आंसर देना है। अगर आप लॉजिकली दिमाग लगाएंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, आई टेल यू। यस, आप आंसर दे सकते हैं। लॉजिकली सोचिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। लगा रहे हैं तुक्का सोच सोच करके सर, आंसर तो मालूम नहीं है, तुक्का ही लगा लेते हैं, क्या पता कोई सही निकल जाए। देखो जरा ध्यान से सोचो, क्लासिकल का मतलब तो सबसे पहले आई होगी और मॉडर्न सबसे बाद में आई होगी। मिल गया क्लू? मिला क्लू? यानी फर्स्ट ए होना चाहिए, लास्ट डी होना चाहिए। नीचे देखो बी डी सी डी बी डी और लास्ट बचा ए बी सी डी। देखा, मैंने कहा था ना आपको, अगर आप थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएंगे जो शायद आपको नहीं आते। हाँ, जब हमें तुक्का ही लगाना है तो कुछ थोड़ा स्मार्ट वर्क करके लगाए ना, जिसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो। गुड ऑप्शन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए टेक्निक्स, बी वैल्यूज, सी गाइडलाइंस और डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े हैं तो आप उनको टेक्निक कह सकते हो क्या, वैल्यूज कह सकते हो, गाइडलाइंस कह सकते हो, या कुछ भी नहीं कह सकते। तो चॉइस आपकी है, सोचिए और सोच करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सोच लिया आपने? कमेंट किया या नहीं किया नीचे बताइए मेरे को। मुझे पता है आप व्यू कर रहे हैं और आंसर आसानी से चाहते हैं। देखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, कुछ नहीं होगा। मे बी आप गलत भी हो सकते हैं, मे बी आप सही भी हो सकते हैं ना। तो इधर यू आर गोइंग टू विन और यू आर गोइंग टू लर्न। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा है, इधर विन और लर्न। चलिए देखते हैं आपने विन किया या लर्न किया, ऑल ऑफ दी अबव। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने बिल्कुल यही आंसर दिया होगा एंड यू आर द विनर नाउ। ग्रेट। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक्स, वैल्यूज, गाइडलाइंस, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, दे आर नॉट सेम एज टेक्निक, एज वैल्यूज और एज गाइडलाइंस, राइट। Which of the following statements is false about Taylor and Fayol? अरे वाह, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी ऑप्शंस, इसको समझने में तो बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। आप निश्चित तौर पर अपना पूरा टाइम लीजिए, अच्छे से समझिए और फिर आंसर कीजिए। Which of the following statements is false about Taylor and Fayol? सोच लिया? ये तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ लो पढ़ लो।
टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड फ्यूल वाज ए माइनिंग इंजीनियर। अच्छा, आपने चूज कर लिया, कौन सा ऑप्शन चूज किया है? ए, बी, सी और डी? नहीं, मन में चूज नहीं करना जी, मन में चूज नहीं करना, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। हाँ, साथ में ये भी मेंशन कर दीजिएगा, क्वेश्चन 5 ए ऑप्शन, क्वेश्चन 5 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 5 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 5 डी ऑप्शन, जो आपको अच्छी लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फेयोल? तो आपको क्या करना है, आपको बताना है, क्या बताना है, बिल्कुल। चलिए मैं लॉक कर देता हूं आपका आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। फ्यूल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन whereas Taylor principles have universal application। ये स्टेटमेंट उल्टी है। पूछ रहा है कौन सी फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, जबकि टेलर के प्रिंसिपल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और वी कैन से फॉल्स। उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही आंसर चुना होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। अगर आपने विन नहीं किया तो आपने लर्न किया, विश यू ऑल द बेस्ट। और भी अच्छी बात है आपको, यू लर्न समथिंग न्यू। रेफरल कोड बार बार याद रखिएगा, आपको जब भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना हो, रेफर करना हो, साथ में जरूर रेफर कीजिएगा कि द प्लस कोर्स रेफरल कोड इज राम आहूजा, ताकि किसी का भला हो सके। इज दैट क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, मैच द फॉलोइंग techniques, principles, values, guidelines, and you have some options with you। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैच द फॉलोइंग है और आपको आंसर करना है। अच्छे क्वेश्चंस है ना? आई नो, आई नो, यू आर लविंग इट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मैच द फॉलोइंग, आपको कंपेयर करना है टेक्निक्स को, प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, गाइडलाइंस को, और सामने ऑप्शन दी हुई हैं कि प्रोसीजर या मेथड होता है, गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन होता है, मॉरल नोटेशंस होता है, या इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस होता है। आई थिंक ये आपको हेल्प भी करेगा इन चारों में डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा क्लू ढूंढिए, मैच कीजिए, ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन में आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाएगा जिससे आप इसको डेफिनेटली कर पाएंगे। नहीं समझ आ रहा, सोचिए। प्रिंसिपल्स आर दी गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस। तो गाइडलाइंस क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। चलिए आपको दिखाते हैं करेक्ट आंसर इज A1 C3 B2 D4, यानी जिसके सामने जो लिखा है वो उसका करेक्ट आंसर है। टेक्निक्स का मतलब होता है प्रोसीजर्स और मेथड्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस, वैल्यूज का मतलब होता है मॉरल नोटेशंस, और गाइडलाइंस का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। तो A1 C3 B2 और D4, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सामने वही लिखा हुआ है जिसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद नहीं थी ना ऐसा क्वेश्चन आएगा? एग्जैक्टली। चलिए, नाइस। Which of the following statements are true with respect to nature of principles of management? अरे बाप रे, आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी अब आपको ये याद होना चाहिए कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और उससे रिलेटेड आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं। 1, these have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experience of the managers. Second, derivation of these may be said to be a matter of science and their creative application may be regarded as an art. And third,
These principles lend credibility of a learnable and teachable discipline to the practice of management. आपको बताना है which of the following statements are true. कौन सी ट्रू है? फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, या सेकंड थर्ड ट्रू है, या फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, या आपको लगता है तीनों ही ट्रू है? पढ़िए, टेक योर ओन टाइम। देखिए बड़ा मजा आ रहा है, आप यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, और आपको पता चल जाएगा कि किस क्वालिटी के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। काइंडली गो थ्रू दिस। कमेंट बॉक्स में डाल दिया आपने? टेल मी, कमेंट बॉक्स में डाला ABCD? नहीं डाला फिर मजा नहीं आएगा। पता है आपको कंफर्म करना है कि आप सही हैं गलत है, पता है एक चूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मन पता है क्या करेगा, दो ऑप्शन लेके ढूंढता रहेगा। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लाइक दिस। लेकिन जब तक आप एक ऑप्शन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कमिटेड नहीं होंगे। इसलिए कमिटमेंट को पूरा कीजिए, नीचे डालिए, डालिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ताकि कंफर्म किया जा सके कि आपने बिल्कुल सही आंसर किया है या नहीं। इज दैट क्लियर? डाल दिए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा था आपके कमेंट का। चलिए लॉक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं अगर हम नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखें। और अगर आपने डी चूज किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखा, ये होती है कमिटमेंट। आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ना अगर आपने कमेंट में डी डाला हुआ है तो। यस, आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे मोटिवेशन भी आएगा, वाओ मैंने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The principles of management are intended to apply to all types of organizations, business as well as non-business, small as well as private sector, manufacturing as well as services sectors. However, the extent of their applicability would vary with nature of the organization, business activity, scale of operations, all of the above. बताइए जी, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पढ़ के मेरे को बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सोच लिया, समझ लिया? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ब्रिंगिंग यू अप द क्वालिटी, राइट? The extent of their applicability would vary with dash nature of the organization, B business activity, C scale of operation, or D all of the above. लॉक कर दो बच्चा? कमेंट बॉक्स में डाल दिया? डाल दी कमेंट बॉक्स में? द करेक्ट आंसर इज all of the above. The extent of their applicability would vary with nature of the organization, business activity, and scale of operations, all of the above. That's great. Superb. Let's move to the next question. The degree of concentration of authority, that is centralization, or its dispersal, that is decentralization, will depend upon the situations and circumstances of each enterprise.
Find out the nature of principles of management highlighted in the above statement. And your options are the degree of concentration of authority or its dispersal will depend upon the situations and circumstances of each enterprise. Find out the nature of principles of management highlighted in the above statement. A. General guidelines. B. Formed by practice and experimentation. C. Flexible और D. Contingent. आपको लगा कि खाली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे कि बताइए कौन सा प्रिंसिपल है और आप जीत जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल। बट आई टेल यू ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही बिलोंग करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को बेस बना करके क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही कर पा रहे। नहीं समझ आ रहा? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं और आपको बता देता हूं। दे आर फ्लैक्सिबल इन नेचर। मतलब आपने डिग्री को डिसेंट्रलाइज किया, अब आपको लगता है कि अथॉरिटी ट्रांसफर करने से आपको दिक्कत हो रही है तो वापस ले लो, सिंपल। दे आर फ्लैक्सिबल इन नेचर मतलब प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, एक बार हो गया तो आप वापस नहीं हो सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सिचुएशन के हिसाब से आप पावर दे भी सकते हो, सिचुएशन बदलने के बाद में पावर वापस भी ले सकते हो। इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। देयरफॉर these principles of management are flexible in nature. Good learning na? The employees deserve fair and just remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors. They include contribution of the employee, paying capacity of the employer, and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. Find out the nature of principles of management highlighted in the above statement. सर आप क्वेश्चंस नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स के पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि मैं आपको बता दूं पीछे पास बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नोट डाउन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक सेट में ये क्वेश्चन था और दूसरे सेट में क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। बताइए जी। द एम्प्लॉइज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर is determined by multiple factors. They include contribution of the employee, paying capacity of the employer, and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. Find out the nature of principles of management highlighted in above statement. A, B, C, D. फिर से कमेंट करना बंद कर दिया आपने, ऐसे मत सोचिए, आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है। काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी ऑप्शन कौन सी चूज की है आपने, ए, बी, सी और डी। डू इट नाउ, यस नाउ। कितनी देर लिखती है? क्वेश्चन 10 ए, क्वेश्चन 10 बी, ये तो लिखना है और क्या करना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर डालो और साथ में उसके बाद में अपना कमेंट डाल दो। 10 के बाद बी है, सी है, डी है या ए है। लॉक कर दूं? अब सही है, आपने कमेंट कर दिया, इसके बाद आप कमिटेड हो गए। इट इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट कैसे है? देखिए मैं आपको बताता हूं। हर एम्प्लॉई फेयर रेम्यूनरेशन डिजर्व करता है, बिल्कुल करता है, सबको फेयर मिलना भी चाहिए, लेकिन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा दैट इज कॉन्टिंजेंट, मे और मे नॉट। रीजन? क्योंकि कई बातों पर निर्भर करता है ये।
कि वो जो एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस समय एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ऑलरेडी जो वेज रेट चल रहा है उस ऑक्यूपेशन के अंदर में वो कितना चल रहा है। तो इन सारी बातों पर निर्भर करता है, तो उसको फेयर रेम्युनरेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, मे और मे नॉट हैपन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट। आपने पढ़ा होगा ना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, विच मे और मे नॉट ऑकर, सेम थिंग इज हियर। होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। गुड। जस्ट a referral reminder, my referral code is Ram Ahuja and the fees for the class 11th and 12th subscription is 938 rupees per month only. Do refer to your friends, relatives, colleagues, your juniors, and if you are in 12th class, your fees is 1125 rupees per month only, and by using this code, referral code Ram Ahuja, you are going to get 10% discount. Yes, अच्छा है ना? Good. Next question with you. Next question. Biocon Limited is an integrated biotechnology enterprise focused on the development of biopharmaceuticals, custom research, clinical research, and enzymes. It delivers products and solutions to partners and customers in over 50 countries. Who is the founder of Biocon Limited? ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी खोलो, मिल जाएगा आपको। फिलहाल तो मुझे आंसर बताइए। इट इज इंदिरा नोई, चंदा कोचर, रोशनी नादर और डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ। बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपका ये वाला। बायोकॉन लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइज focus on the development of biopharmaceuticals, custom research, clinical research, and enzymes. It delivers products and solutions to partners and customers in over 50 countries. तो इसकी फाउंडर कौन है? Who is the founder of Biocon Limited? Girls, especially you must know it. The girls who are watching this video, you must know it. देखिए सारी लेडीज के नाम है यहाँ पर, वुमेन एम्पावरमेंट। इंदिरा नोई, चंदा कोचर, रोशनी नदार, डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ। ये तो इजी क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन है ये तो अगर आपने बुक में नहीं भी पढ़ा तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। इट्स जीके बेस्ड क्वेश्चन। लॉक कर दूं? कमेंट बॉक्स में डाला नहीं ना, गलत बात है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में डालिए, ये आपकी कमिटमेंट को शो करेगा। यार यू आर गोइंग ईदर लर्न और विन, या तो जीत जाओगे या लर्न कर जाओगे, दोनों में आपका फायदा है। जरूर डालिए, मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा कि कितने लोगों ने सबके कमेंट डाले इसके। आई विल चेक पर्सनली। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ। इनकी बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। डेफिनेटली इसको पढ़िएगा, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैनेजर कैन लीव routine decision making to his subordinates and deal with exceptional situations which require her or his expertise by following the principles of delegation. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. Your options are these. जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस हाईलाइटेड है, वो कौन सी है? ए, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। बी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। सी, साइंटिफिक डिसीजंस। डी, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड, थैंक यू। A manager can leave routine decision making to his subordinates and deal with exceptional situations which require her his expertise by following the principles of delegation. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. Providing managers with useful insights into reality.
ए, ऑप्शन बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, सी साइंटिफिक डिसीजंस, और डी मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। बताइए बताइए, घूम गए? आपने सोचा मैं प्रिंसिपल पूछूंगा? कितने तैयार होकर के बैठे थे ना ये सोच करके कि आज राम सर प्रिंसिपल्स पूछेंगे, 14 प्रिंसिपल्स हैं, फटाफट घटाघट नाम बताएंगे और आंसर जीत जाएंगे। लेकिन यह सारे क्वेश्चंस उल्टे सीधे आ रहे हैं। जी हाँ, यही क्वेश्चन आपको हैरान और परेशान करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे साथ प्रिपेयर कीजिए, डू ज्वाइन प्लस कोर्स, ताकि आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर सकें। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं और लॉक कर देते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। एक इनसाइट मिलती है रियलिटी के बारे में। ठीक है, जब हम एक्सेप्शनल सिचुएशंस को डील करते हैं तो वी गेट इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन वर टू टॉक ऑफ इक्विटी टुडे, it does not apply to wages alone. Value to customers, care for the environment, dealings with business associates would all come under the purview of these principles. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. Again, significance of principles of management, मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। So please try to find out the answer. If one were to talk of equity today, it does not apply to wages alone. Value to customers, care for the environment, dealing with business associates would all come under the purview of this principle. ये equity principle का purview तो बढ़ा दिया। Equity का मतलब खाली wages नहीं है कि wages बराबर मिले, ये सारी चीजें भी आती है। बताइए ये कौन सी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की? आज ये क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से। डाल दिया आपने कमेंट बॉक्स पे, मुझे पता भी नहीं चला, अरे वाह। चलिए अच्छी बात है अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया इसको। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं, एनवायरमेंट की केयर कर रहे हैं, बिजनेस एसोसिएट के बारे में ध्यान रख रहे हैं, तो दिस इज फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट। यस, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, अच्छा सुना सुना नाम है ना ये लिज्जत पापड़ का। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इज सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कोर वैल्यूज, फाइंड आउट दी वन। The concept of business, the concept of family, the concept of devotion, और all of the above। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने कि महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इज सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कोर वैल्यूज, फाइंड आउट द वन। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन, और ऑल ऑफ द अबव। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है और मुझे पता है आपने क्या किया होगा, आपने ऑप्शन डी को चूज किया होगा। ऐसे ही किया है ना? क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन का आंसर यही होता है।
लग भी रहा है कि महिला गृह उद्योग जो है, लिज्जत पापड़ जो है, वो बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट है, एक फैमिली का भी कॉन्सेप्ट है और डिवोशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब जो कोर वैल्यूज हैं वो सारी आएंगी। आहा, इजी क्वेश्चन सर, शुक्र है पहली बार कोई आसान क्वेश्चन दिया जो करेक्ट है, राइट, गुड। द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट about dramatic improvements in internal efficiencies and customer satisfaction. Identify the principle of scientific management highlighted in the above statement. 1. Science not a rule of thumb. B. Harmony not discord. C. Cooperation not individualism. Or D. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. भैया शुक्र है प्रिंसिपल्स पर आ गए सर, है ना, वरना सोचा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है और कोई प्रिंसिपल डिस्कस ही नहीं हो रहा अभी तक। तो आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, चूज कीजिए आंसर और बताइए क्या होना चाहिए आंसर आपका। द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन इंटरनल एफिशिएंसीज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट highlighted in above statement. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ओके। सबको सबसे पहले यही लगता है कि सर ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ही होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं सर ये तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी लग रहा है। ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा हो सकता है? नहीं, बताना तो एक ही पड़ेगा सर। ना ना ना, ना दोनों 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 नहीं, ना ना ना, दोनों नहीं, एक बताना पड़ेगा। बेटर है कि आप अपनी कमिटमेंट को रजिस्टर्ड करा लीजिए। रजिस्टर्ड कैसे? नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के। हाँ जी, अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। दैट वुड बी क्वाइट इजी ना। हाँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थम, है ना। अब इंटरनेट यूज करो, नई नई चीजें यूज करो, क्या पुरानी रूढ़िवादी काम करने हैं? नहीं, समथिंग न्यू होना चाहिए, होना चाहिए ना। दैट्स करेक्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थम। ये क्या, ये कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे? जापानीज कंपनीज कहां से आ गया? इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस। There is complete openness between the management and workers. If at all workers go to strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. Identify the principle of scientific management highlighted in above statement. In Japanese companies, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताना है भाई। ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है सर? जापानीज कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल कंट्रीज। हमने जापान का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब आपको आंसर बताना है। इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस, देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। If at all workers go to strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. मतलब जापान के अंदर में अगर वर्कर्स को स्ट्राइक पर जाना है तो ब्लैक बैच पहन लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मल से भी ज़्यादा काम करते हैं ताकि मैनेजमेंट उनकी सिंपैथी को गेन कर पाए मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट उनकी बात को मान ले। क्या बात है, रिवर्स। यहाँ तो स्ट्राइक पर जाते हैं तो सारा काम धाम बंद कर देते हैं, पैनलाइज करते हैं मैनेजमेंट को, प्रेशर क्रिएट करते हैं, भैया हमारी बात को मानो। लेकिन जापान में उल्टा है, मैनेजमेंट की सिंपैथी गेन करने के लिए नॉर्मल से भी ज़्यादा काम किया जाता है, स्ट्राइक पर जाने पर ब्लैक बैच पहना जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन अबव स्टेटमेंट। ए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सी, cooperation not individualism. Or D, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. लॉक कर दिया जाए जी। लॉक मैं तब करूंगा जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, आप अपने आप को लॉक करेंगे जी।
आप अपने आप को लॉक कीजिए और मैं आपका आंसर यहां पर लॉक कर दूंगा। जल्दी कीजिए ना, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। दैट शोज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर आंसर, कि वो सही है कि गलत है। डाल दिया तो लीजिए, हम भी अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। इट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। भैया मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक फैमिली की तरह रहना चाहिए, है ना। अब बिल्कुल साफ साफ ये बात ऊपर लिखी हुई है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कितना भी स्ट्राइक हो जाए लेकिन वो सिंपैथी गेन करते हैं, आपस में मिलके रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। इसका मतलब यह जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस हो रहा है वो वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इज दैट क्लियर? Identify the principle of scientific management highlighted in the above statement is harmony, not discord. Clear हो गया? Let's come to the next question. Management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees. They should be rewarded for their suggestions, which result in substantial reduction in cost. They should be part of management, and if any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. Identify the principle of scientific management highlighted in the above statement. Management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees. मतलब अगर एम्प्लॉय कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन देते हैं तो मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं कर लेने चाहिए। रादर दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस। अगर उनके सजेशन से कोई भी सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट आती है, फायदा होता है, कॉस्ट कम होती है, तो हमें उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना चाहिए। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। अगर आप चाहते हो कि वर्कर्स को ध्यान में अपनी डिसीजन ले रहे हैं तो वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए और तब डिसीजन लीजिए। अब आपको बताना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट highlighted in above statement. Your options are science not rule of thumb, B harmony not discord, C cooperation not individualism, or D development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. बताइए जी, सोच समझ के बताइए। मैंने क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही क्लियरली डिस्कस किया है and you have 4 options, very close options with you, और आपको सोच के बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे पता है आपको 2 ही आंसर लग रहे होंगे और उसी में आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि सर ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो सकता है या कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो सकता है। डेवलपमेंट की बात तो यहाँ नहीं कही जा रही है, ना ही साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात कही जा रही है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मुझे पता है बी सी में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आपको एक तो लॉक करना ही होगा। और उसको लॉक करने के लिए आप क्या करेंगे? मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आप अपने आंसर को लॉक कर दें। फिर हमारा कंप्यूटर यहां पर आपके आंसर को लॉक करेगा और हम देखेंगे क्या ये मैच करता है या नहीं करता। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज। They should be rewarded for their suggestions, which result in substantial reduction in cost. यार मजा आ रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन तो होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स पता चल जाएंगे तो इस गेम का क्या मजा आएगा, नहीं? या लेट्स गो टुगेदर। लॉक कर दिए कमेंट बॉक्स में? क्या किया है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी? कुछ लोगों ने ऑप्शन बी किया है, कुछ लोगों ने ऑप्शन सी किया है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा ताकि ध्यान रहे कि आपने ऑप्शन बी या सी कौन से क्वेश्चन का लॉक किया है, 16 का, 17 का या 18 का। हाँ, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलना चाहिए, उनके सजेशंस को सुनना चाहिए, है ना, उनके कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस को सुनना चाहिए। एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, अकेले अकेले नहीं चलना चाहिए।
दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, इतना भयंकर क्वेश्चन कैसे आ गया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, ए। ऑप्शन बी एब्सोल्यूट, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन डी बिहेवियरल। ओए होए, इतना छोटा क्वेश्चन और इतना खड़ूस। हाँ, लग रहा है ना ऐसा कि क्या आंसर होना चाहिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट ए यूनिवर्सल, बी एब्सोल्यूट, सी फ्लेक्सिबल और डी बिहेवियरल। बताइए जी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। अब तक लग रहा था बड़े क्वेश्चन है तो दिक्कत हो रही थी, बल्कि छोटे क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होती है। यू डोंट हैव मोर इन्फॉर्मेशन ना। बड़े क्वेश्चन के अंदर में प्लस पॉइंट क्या होता है, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो आंसर फाइंड आउट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन, जब क्वेश्चन छोटा होता है तो इंफॉर्मेशन कम होती है, उसमें आंसर ढूंढने के चांसेस काफी कम होते हैं। Principles of management are not absolute. They are universal in nature, yes. They are flexible in nature, yes. They are behavioral, yes. They are not absolute solution to all the problems. है ना? These are just general guidelines to help you. He keeps machines, materials, tools, etc. ready for operations by the concerned workers, whose work is described by this sentence under functional foremanship. Functional foremanship में किसके बारे में बात की जा रही है? He keeps machines, materials, tools, etc. ready for operations by the concerned workers. A. Route clerk, B. Repair boss, C. Gang boss or D. Time and cost clerk. फंक्शनल फॉर्मैनशिप में कौन है भाई? ये जो मशीन्स को, मटेरियल्स को, टूल्स को रेडी रखता है ऑपरेशंस के लिए, कंसर्न वर्कर्स के लिए। ये तो इजी लग रहा है। हाँ, रूट क्लर्क आएगा, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। चूज आपको करना है, मुझे नहीं। प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अपने आंसर को लॉक कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, ताकि आप भी चेक कर सके कि आप सही हैं या गलत हैं। राइट, दिस यू हैव टू सिलेक्ट whether your answer is correct or not. लॉक कर दिया जी। अभी नहीं किया, डाउट हो रहा है थोड़ा सा, सोच लीजिए। आपको लग रहा होगा सर ये हो सकता है, चलो गेस करता हूँ आपके हिसाब से रूट क्लर्क होना चाहिए या फिर रिपेयर बॉस होना चाहिए। गैंग बॉस भी हो सकता है, मशीन मटेरियल टूल्स को चेक करे भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नहीं लग रहा, नहीं। रूट क्लर्क भी कुछ खास नहीं लग रहा, तो रिपेयर बॉस हो सकता है, गैंग बॉस हो सकता है। लेकिन दो आंसर्स नहीं सर। कमेंट बॉक्स में दो आंसर मत पुट कीजिएगा, प्लीज पुट वन आंसर ओनली, ओनली वन आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, लॉक कर दूं? द करेक्ट आंसर इज रिपेयर बॉस, जो हमेशा मशीन को रेडी रखता है, रिपेयर करके रखता है। कोई मशीन कोई खराब तो नहीं है, कोई मटेरियल खराब तो नहीं है, कोई टूल खराब तो नहीं है, ताकि वर्कर्स को कभी कोई दिक्कत ना आए। दिस इज रिपेयर बॉस। चलिए आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द मेंटल रिवॉल्यूशन? Which of the following statements best describe the mental revolution? A. The management and workers should not play the game of one-upmanship. B. It implies the change in attitude. Option C. Both management and workers require each other. And D. Workers should be paid more wages. देखिए आपको वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो मेंटल रिवॉल्यूशन को बहुत ही बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है।
हाँ, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू चूज द बेस्ट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी ऐसे स्टेटमेंट जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हो, ए बी सी डी चारों पॉइंट्स कवर हो जाते हो एक स्टेटमेंट में। ऐसे स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द मेंटल रिवॉल्यूशन? मुश्किल है, मुझे पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। लॉक कीजिए अपने आप को, ईदर यू आर गोइंग टू विन और यू आर गोइंग टू लर्न। लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन यू विन और यू लर्न। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज इट इम्प्लाइज चेंज इन एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड बदल जाएगा तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, और मेंटल रिवॉल्यूशन का सारा फोकस एटीट्यूड को बदलना ही था। Is that clear, guys? So thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with me for such a long time. Thank you for so much for commenting below. Don't forget to use referral code Ram Ahuja. Right, this is my referral code, and you will get 10% discount while joining Plus courses. Do follow me on Unacademy app, ताकि जो भी मेरे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। Right? Thank you so much. See you in the Plus courses. Till then, take care. Bye bye. Bye everyone. Thank you.